Hello student, today we will study pistil, megasporangium and embryo sac. Gynoecium, we have already studied different floral walls, calyx, corolla, androecium and gynoecium. Essential walls are androecium and gynoecium. Gynoecium represent the female reproductive part of the flower, and if gynoecium consists of single pistil, then it is monocarpellary. If gynoecium consists of more than one pistil, then it is multicarpellary. If there are more than one pistil, then these pistil may be free or fused. If the pistil are free, then syncarpous. If pistil are if pistil are fused, then syncarpous. If pistils are free, then apocarpus. See here, this is monocarpellary condition when single pistil is present, and these two are multicarpellary conditions. Here apocarpus means pistils are free. See here, 1, 2 and 3. These three pistils are free. They are not fused. See here, all the three pistils are fused together. Then this condition is syncarpous. Here comes the pistil. Pistil consists of three parts: stigma, style and ovary. See here, the uppermost part is stigma. It serves as landing platform for pollen grain. Pollen grain we have already studied. Pollen grains, after their release, they are transferred to the stigma, and it serves as a stigma serve as landing platform for pollen grain. What is the style? It is elongated slender part beneath the stigma. Below the stigma, this neck like structure, this is known as style, and the basal bulge part is this one. This part is known as ovary. Okay, inside the ovary, ovarian cavity is present. This white cavity is known as locule. Okay, placenta is located inside the ovarian cavity. Arising from the placenta are the megasporangium, commonly called ovule. This structure is ovule. This structure is attached with the wall of the ovary by the placenta. See here, the point of attachment of ovule to the ovary is known as placenta. Structure of ovule. Ovule is present inside the ovary. See this structure. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Structure present inside the ovary. Ovule consists of funicle. यहाँ पे देखिए. So what is the funicle? Ovule is attached to the placenta by means of a stalk called funicle. यहाँ पे देखिए, this stalk is known as funicle, by which ovule is attached to the placenta. Second is hilum. It represents the junction between ovule and funicle. यहाँ पे देखो, ये जो point है junction का, this is hilum. Then third is integuments, protective outer covering. One covering, second covering. Similarly here, these covering are known as integuments. Then comes micropyle. It is a small opening at the tip of ovule. This opening is known as micropyle, and at this opening integuments are absent. Then chalaza, just opposite. Micropyle के just opposite end क्या है? ये end है. This is known as chalaza. Opposite the micropylar end is the chalaza, represent the basal part of the ovule. इस ovule का basal part क्या है? ये.
and this is chalazal pod. Nucellus. Enclosed within the integument is a mass of cell called the nucellus. ये जो मास ऑफ सेल है इंटेग्यूमेंट्स के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूसेलस. एंड द सेल्स ऑफ द न्यूसेला है अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल. अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब यहाँ पे देखो एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द सेल ऑफ न्यूसेलस. देन लास्ट कम्स द एम्ब्रियो sac. Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. Other name of embryo sac is female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore through reduction division. ये हम आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन. सो ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ फ्यूनिकल, हिलम, इंटेग्यूमेंट, micropyle, chalaza, nucellus and embryo sac. So funicle is the attachment funicle is the attachment point of ovule to the placenta. Hilum represent the junction between ovule and funicle, and integuments, these are protective covering. Micropyle, it is the small opening at the tip of ovule where integuments are absent. Chalaza, opposite to the micropylar end, is the chalazal end. Nucellus, enclosed within the integument is a mass of cell called nucellus, and embryo sac is present located in the nucellus. ये देख लेना आप डायग्राम. नेक्स्ट इज मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. What was microsporogenesis? As we have studied in earlier lecture, process of formation of microspore from microspore mother cell. Okay, and megasporogenesis, formation of megaspore from megaspore mother cell. This is megasporogenesis. Ovule generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus. nucellus की कोई भी एक सेल, जो भी माइक्रोपाइलर एंड की कोई भी सेल डिफ्रेंशिएट होगी किसमें? मेगास्पोर मदर सेल. ये आपको ध्यान रखना है कौन से एंड की? माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस. एनी सेल गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल. डिफ्रेंशिएट होने का मतलब क्या है? वो मेगास्पोर मदर सेल बाकी न्यूसेलस की सेल से दिखेगी. यहाँ पे देखिए ये के सेल है, ये सेल्स हैं, बट द सेंट्रल सेल नोन एज मेगास्पोर मदर सेल, इट इज लार्ज इन साइज, इट्स न्यूक्लियस इज लार्ज, prominent nucleus, and it cytoplasm is dense. So it is differentiated. बाकी की सेल्स से ये डिफरेंट होगी. सो मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर. अब यहाँ पे देखो फर्स्ट मियोसिस से क्या हुआ? सेकेंड 2 सेल बने, 2 मेगास्पोर डायड बना. यहाँ पे देखो आफ्टर दैट फ्रॉम सेकेंड मियोटिक डिवीजन टेट्राड इज फॉर्म. दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी यही हुआ था. सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने थे. मेगास्पोरोजेनेसिस में भी सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं. यहाँ पे भी टेट्राड बन रहा है, बट इन केस ऑफ माइक्रोस्पोर, आउट ऑफ द 4 माइक्रोस्पोर 4 वर फंक्शनल. ओके, बट यहाँ पे स्टोरी डिफरेंट है. आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर टेट्राड ओनली 1 इज फंक्शनल. अब 1 कौन से वाले फंक्शनल होगी वो हम आगे देखेंगे. तो अभी इतना क्लियर है. ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द सेल. नेक्स्ट इज फीमेल गैमेटोफाइट.
फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है? एम्ब्रियोसेक. See here, in a majority of flowering plant, one of the megaspore is functional, while other three get degenerate. एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने बने? 4. Out of these 4, one of the megaspore is functional. One of the megaspore is functional, while other 3 get degenerate. Degenerate का मतलब क्या होता है? They get lost. यहाँ पे देखो 4 मेगास्पोर थे, 4 में से ऊपर के 3 डिजनरेट हो गए, ओनली 1 रिमेन फंक्शनल. नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर सेल undergo various mitotic division. Okay, only the functional megaspore develop into female gametophyte. Okay, this method of embryosec formation from a single megaspore is termed monosporic development. So what is monosporic development? It is the method of formation of embryo sac from a single megaspore. Okay. So what will be the ploidy of cell of nucellus? न्यूसेलस की सेल की प्लॉइडी क्या होती है? अगर हम कंसीडर करें कि प्लांट डिप्लॉइड है तो न्यूसेलस की सेल की प्लॉइडी भी क्या होगी? 2n. व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ मेगास्पोर मदर सेल? क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल क्या है? न्यूक्लियस की कोई एक सेल डिफ्रेंशिएट होती है बट उसमें अभी तक रिडक्शन नहीं हुआ है, तो मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी भी क्या होगी? डिप्लॉइड. देन फंक्शनल मेगास्पोर, यहाँ पे देखिए फंक्शनल मेगास्पोर is formed after 2 meiotic division. 3 get degenerated, only 1 functional megaspore is active. So यहाँ पे इसकी प्लॉइडी क्या हो गई? n. Then female gametophyte एम्ब्रियोसेक, ये हम आगे देखेंगे. अभी तक हमने देख लिया था फंक्शनल मेगास्पोर तक. ओके. Then formation of embryo sac. The nucleus of functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei. अब यहाँ पे देखिए डिवीजन क्या है? माइटोटिक डिवीजन. ओके. मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनने का प्रोसेस, मेगास्पोर 1 मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होने के जो प्रोसेस है उसमें 2 मियोटिक डिवीजन होते हैं. बट आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड दिस 1 मेगास्पोर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर सेल अंडरगो वेरियस माइटोटिक डिवीजन. ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डिवीजन कौन सा हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई. सो सबसे पहले क्या होगा? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट माइटोसिस से फंक्शनल, दिस वाज द फंक्शनल मेगास्पोर. इट आफ्टर फर्स्ट माइटोसिस इट फॉर्म बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, 2 न्यूक्लिएट कंडीशन. सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या फॉर्म होगा? 4 न्यूक्लिएट कंडीशन. फिर थर्ड माइटोटिक डिवीजन से क्या होगा? 8 न्यूक्लिएट कंडीशन. ओके. सबसे पहले क्या हुआ? मेगास्पोर मदर फंक्शनल मेगास्पोर सेल डिवाइड माइटोटिकली. आफ्टर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इट फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो. देन सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इट फॉर्म 4 nucleate embryo. Then third mitotic division it form 8 nucleated embryo cell. Okay. After the 8 nucleated cell wall are laid down, leading to the organization of typical female gametophyte or embryo sac. यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है. माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर. यहाँ पे देखो पहले हमने पढ़ा था टेपिटम की सेल, हाउ द टेपिटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट, बिकॉज देयर इज एंडोमाइटोसिस. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एंडोमाइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. सो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड कर रहे हैं, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है. ओके. सो न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन.
इमीडिएटली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन थोड़ा सा लेटर ऑन होता है. सो आफ्टर द 8 न्यूक्लियस स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन. तो 8 न्यूक्लियस स्टेज तक सेल वॉल नहीं फॉर्म होगा. जब 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है. एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेल. ओके. Now, how the cell wall is formed? 6 of the 8 nuclei is surrounded by the cell wall. यहाँ पे 8 nuclei हैं. 3 nuclei will move upward side, 3 will move towards the chalazal side. तो यहाँ पे देखिए, ये आपको एंड बहुत ध्यान रखना है कि एग अपैरेटस किस साइड फॉर्म होगा, एंटीपोडल सेल किस साइड फॉर्म होंगे, माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड. ये आपको ध्यान रखना है कि एग अपैरेटस किस साइड फॉर्म होगा, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. ये आपको ध्यान रखना है, इट्स इम्पॉर्टेंट. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं कई बार. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall. ओके. यहाँ पे देखिए 3 on the upward side, 3 on the micropylar end. ओके. अब तो टोटल 6 हो गया. Only these 6 nuclei are surrounded by the cell wall. Remaining 2 nuclei called polar nuclei. तो जो सेंटर में जो न्यूक्लियाई हैं दो, इनको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई. दीज आर सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल. ओके. इनके जस्ट एग अपैरेटस के जस्ट बिलो सिचुएट. ये एक्चुअली क्या है, इसको ये जो स्टेज है इसको रिवर्ट कर दिया गया है. यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड इस साइड था, अब यहाँ पे इस साइड आ गया माइक्रोपाइलर एंड. तो इस पोजीशन को थोड़ा सा ऐसे रिवर्ट किया हुआ है. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. तो एग अपैरेटस कौन से एंड की तरफ होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. ये आपके माइंड में होना चाहिए. एंड माइक्रोपाइल क्या क्या था, अपर्चर. इट इज द अपर्चर एट विच इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट्स. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. Okay? ये देखो 2 synergids हैं यहाँ पे और 1 egg cell is present here. Okay? ये एक important characteristics है synergids की cell की. Synergids have special cellular thickening at the micropylar tip. माइक्रोपाइलर की यहाँ पे देखिए टिप के ऊपर स्पेशल थिकनिंग प्रेजेंट है. इसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स. तो जैसे पोलन ट्यूब इधर से आएगा, इट विल गाइड द पोलन ट्यूब अप टू द एग एंड पोलन न्यूक्लियाई. 3 cells at the called the antipodal cell. ये चैलेजल एंड की तरफ उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल. लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई. सेंटर में एक लार्ज सेल होगा, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे. ये देखो यहाँ पे कितनी सेल्स हैं, 1, ज़्यादा ही होगा. यहाँ पे देखिए 3 cells, 1, 2, 3. These are antipodal cell. 4, 5, 2 synergids. 6, 1 egg cell. And this large cell is known as central cell containing 2 polar nuclei. तो यहाँ पे टोटल कितनी सेल हैं, 7 सेल. ओके. 6, 3 एंटीपोडल, 2 synergids, 1 egg cell, 6 हो गया. एंड 7th इज सेंट्रल सेल. अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियाई कितने हैं, 3 तो एंटीपोडल सेल के, 2 synergids के, 1 egg cell का, 6 एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई. तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई हो गए, 8. तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे,
7 nucleate, 7 cell and 8 nucleate stays. क्लियर है? मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ. यहाँ पे देखिए, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज. यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहे हैं इस डायग्राम में. 1 cell, 3 cell are antipodal cell, 2 cell are synergids, 1 is egg cell, and 7 cell is large central cell containing 2 polar nuclei. ओके, अब यहाँ पे न्यूक्लियाई कितने हैं? 8 न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल के, 2 सिनर्जिड्स के, 1 एग सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल. तो यहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज. इज दैट क्लियर? ये आप देख लेना, बेटर अंडरस्टैंडिंग के एक बार इससे गो थ्रू हो जाना. देन डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल. Okay, microspore mother cell is diploid. It is the formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell. Okay, it occur inside the mycosporangium or pollen sac. It occur inside the megasporangium. Then microsporangium, there are numerous microspore mother cell, but there is generally a single megaspore mother cell. तो ये बहुत important point है. Okay, all the product of microsporogenesis are functional. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं. चारों के चारों फंक्शनल होते हैं. बट मेगास्पोरोजेनेसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं. 4 में से सिर्फ ओनली 3 आर डिजेनरेटेड एंड ओनली 1 मेगास्पोर cell is functional. Only 1 megaspore is functional, while other get degenerated. Okay, the product of microsporogenesis give rise to male gametophyte, and functional product of megasporogenesis give rise to female gametophyte or embryo set. Okay, so that was it. Good luck. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो. ओके, गुड लक.